भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन टेल whatever I have heard and whatever I have understood. हरे कृष्णा। यह डिस्कसिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या है 11। तो श्लोक इस प्रकार से है। हरे गुणा क्षिप्ता मते। Anybody is repeating or I should go ahead? Hare Krishna, can you hear me? Yeah, yes, Prabhu. Hare Krishna. Okay. हरे गुणाक्षिता मते। हरे गुणा के मते। भगवान त्रायणिः। भगवान् बादरायणिः अद्यागानमहत् आख्यानम्। अध्यगात्महत् आख्यानम्। नित्यं विष्णु जनप्रियः। नित्यं विष्णु जनप्रियः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srila Sukadeva Goswami, son of Srila Vyasdev, was not only transcendently powerful, he was also very dear to the devotees of Lord. Thus, he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. According to Brahma's Vaivarta Purana, Sri Sukadeva Goswami was a liberated soul even within the womb of his mother. Srila Vyasdev knew that the child after his birth would not stay at home. Therefore, he, Vyasadeva, impressed upon the synopsis of Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. After his birth, the child was still more educated in the subject of Bhagavatam by recitation of the actual poems. The idea is that generally the liberated souls are attached to the features of impersonal Brahman with a monistic view of becoming one with the Supreme Whole. But by the association of pure devotees like Vyasdeva, even the liberated soul becomes attracted to transcendental qualities of the Lord. By mercy of Sri Narada, Srila Vyasdeva was able to narrate the great epic of Srimad Bhagavatam, and by the mercy of Vyasdeva, Srila Shukadeva Goswami was able to grasp the import. The transcendental qualities of the Lord are so attractive that Srila Shukadeva Goswami became detached from being completely absorbed in the impersonal Brahman and positively took up the personal activity of the Lord. Practically, he was thrown from the impersonal conception of the absolute thinking within himself that he had simply wasted so much time in devoting himself to the impersonal feature of the Supreme, or in other words, he realized more transcendental bliss with the personal feature than the impersonal. And from that time, not only did he himself become very dear to Vishnu Janas or the devotees of the Lord, but also the Vishnu Janas became very dear to him. The devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and the desire to become personal servitors of the Lord do not very much like the impersonalists, and similarly, the impersonalists who desire to become one with the Supreme are unable to evaluate the devotees of the Lord. Thus, from the immemorial, these two transcendental pilgrims have sometimes been competitors. In other words, each of them like to keep separate from the other because of the ultimate personal and impersonal realizations. Therefore, it appears that Srila Sukadeva Goswami also had no liking for the devotees.
But since he himself became a saturated devotee, he desired always the transcendental association of Vishnu Janas, and the Vishnu Janas also liked the association, since he became a personal Bhagavata. Thus, both the son and the father were completely cognizant of transcendental knowledge in Brahman, and afterwards both of them became absorbed in the personal features of the Supreme Lord. The question as to how Sukadeva Goswami was attracted by the narration of Bhagavatam is thus completely answered by this sloka. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदां। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे हम कल का श्लोक जो जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आत्मा रामश्च मुनयो, wonderful shloka, and we did lot of chanting as Bhagwan was chatting. तो जब हम उसके ऊपर चर्चा करें तो कितनी सारी बातें हमको पता चली और कितनी सारी बातों को हमने ध्यान पूर्वक सुना, जिसके अंदर हमको ये ज्ञात हुआ कि और श्रील प्रभुपाद के परफेक्ट श्रील प्रभुपाद ने जो उल्लेख किया हुआ है अपने जो तात्पर्यों के अंदर कि एक शब्द के कितने सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक शब्द आता है हरे गुणाक्षिप्त मतिर, तो मतिर यानी हम अपनी मति को कह सकते हैं, अपने माइंड को कह सकते हैं, बुद्धि को कह सकते हैं। और उसी तरह चला प्रभुपाद पहले अपने लेक्चर्स के अंदर, प्रभुपाद लेक्चर्स के अंदर इस श्लोक के ऊपर कहते हैं कि अख्यानम, जो अख्यानम का वर्ड है उसके ऊपर प्रभुपाद बताते हैं। हालांकि जो इसका शब्द कोश है, जो उसके पहले सिनोनिम्स में के अंदर बताया गया है, तो यहाँ पर जो अख्यानम का मीनिंग क्या बताया गया है, अख्यानम नरेशन मतलब बताना। श्रील प्रभुपाद इसको दूसरे एक शब्द के अंदर बताते हैं कि अख्यानम का मतलब है हिस्ट्री, यानी जो हमारा इतिहास है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भाई जो मतलब ये हिस्ट्री है, ये मतलब जो हमारे इतिहास है, ये जो है मनगढ़ित बात नहीं है। जो मनगढ़ित बात कैसे, जैसे अंग्रेज लोग इसको कहते हैं मिथोलॉजी है, तो ये मनगढ़ित मन से बनाई हुई कोई चीजें नहीं है। दीज थिंग्स आर फैक्ट्स। तो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो पुराना। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द बायगॉन डेज। वो बोलते हैं कि जो स्टोरीज हैं बट दे आर द फैक्ट्स, दे आर नॉट द whimsical, यानी मन से मनगढ़ित बातें नहीं है। तो जैसे महाभारत है, तो महाभारत क्या है, महाभारत है मतलब महा यानी ग्रेट, एंड भारत उसको उन्होंने चेंज करके इंडिया कर दिया, उसको संकुचित बना दिया। मगर दरअसल महाभारत, और महाभारत किसके ऊपर आधारित है, भरत महाराज के ऊपर, महाराज भरत के ऊपर उसका नाम दिया गया था। एंड पुराना मतलब ओल्ड, बट पुराना इज नॉट माइथोलॉजी, वो जो है मनगढ़ित बातें नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम ये क्या है, एक अलम जो अमल पुराण है। अमल का मतलब क्या होता है, अमल का मतलब होता है अ और मल, मल यानी गंदा यानी डर्टी, और अमल मतलब जिसके अंदर गंदगी न हो, तो ये अमल पुराण है। तो अमल जो मल का मतलब रियल सेंस के अंदर क्या होता है कि सतो रजो और तमो, ये तीन गुणों से प्रभावित हो तो वो हो गया मल। तो वो जो भौतिक विषय हैं वो सब जो मल, और अमल यानी इन चीजों की कोई जगह नहीं है भागवतम के अंदर, इसके लिए इसको कहते हैं अमल पुराण। तो अमल यानी इसके अंदर से मल निकल गया, यानी सतोरजो गुण निकल गया, तो सिर्फ जो प्योरिटी है, जो प्योर है, वो श्रीमद् भागवत में। तो ऐसी प्योर चीज के अंदर इंटरेस्टेड कौन होगा सुनने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अभी
उसके बाद में श्रील प्रभुपाद को कनेक्ट करते हैं। दैट इज मेंशन हियर, इस श्लोक के अंदर बताया है, हरे गुणक्षिप्ता मति ही, यानी भगवान के गुणों की जो जानकारी रखने वाला ऐसा पागल होना चाहिए। यानी क्षिप्त, क्षिप्त लिख के, क्षिप्त का मतलब क्या था, मैडनेस, यानी पागलपन। यानी यहाँ प्रभुपाद इसको दूसरी तरीके से समझाते हैं कि क्षिप्त का मतलब होता है मैडनेस। तो मैडनेस कैसी होनी चाहिए, पागलपन कैसा होना चाहिए? तो बोलता है जैसे आजकल के लोगों के अंदर दो, प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, दो प्रकार की जो है पागलपन होता है। एक तो भौतिक चीजों के पीछे पागल होना, उसके उसके लिए कोई हमको स्पेशली जो है ना कोई ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती है। आजू बाजू लोग इतने सारे हैं जो हमको अपने आप इसमें ट्रेन कर देंगे और हम पागल हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या बताते हैं प्रभुपाद, इसके लिए जो भौतिकवादी हैं, उन लोग जो भौतिक विषयों के ऊपर पागल हैं, उसको प्रभुपाद कहते हैं प्रमत्ता, जो शास्त्र बताते हैं प्रमत्ता। तो मेटेरियल मैडनेस एंटांगल्स पीपल, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक पागलपन है, वो लोगों को इतना इसमें आसक्त कर देगा कि वो इसी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में फंसे रहेंगे। तो इसके लिए जैसे हमने इसके पिछले जो श्लोकों के अंदर हम लोग को एक कंक्लूजन मिला था कि अगर आपको सही माने में फ्रीडम चाहिए, तो सही माने में फ्रीडम, तो भौतिक विषयों के, भौतिक जगत के अंदर अगर आपको, आप इंडिपेंडेंट होना होगे, यानी आपको इंडिपेंडेंस चाहिए भौतिक जगत के अंदर, भौतिक विषयों के ऊपर, तो आप क्या हो जाओगे, आप बंद जाओगे, आप बद्ध हो जाओगे और इस 84 लाख चक्करों में पड़े रहोगे अनंत काल तक। यानी इसका कोई एंड नहीं आना है। मगर आपको सही माने में फ्रीडम चाहिए तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, गुरु साधु और शास्त्र पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब आपको सही माने में आपको फ्रीडम मिलेगा। और वो फ्रीडम कैसे मिलेगा, तो नारद मुनि जैसा फ्रीडम मिलेगा, किसी भी लोक के अंदर बिना वीजा के जा सकते हो, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी चीज से जा सकते हो। तो वो टाइप का फ्रीडम आपको मिल जाएगा जिसके अंदर कोई आपको बंदिश नहीं होगी। तो वो आध्यात्मिक फ्रीडम है। बट वो फ्रीडम कब मिलेगा, जब व्हेन यू डिपेंड ऑन गुरु साधु एंड शास्त्र। तो इसका मतलब गुरु साधु शास्त्र आपको टोटली डिपेंडेंट बना देंगे भगवान के ऊपर, और भगवान के ऊपर अगर आप आधारित, उस पर आश्रित हो गए, तो आपको फ्रीडम मिल जाएगा। मगर हम इस भव सागर के अंदर फंसे हुए हैं। चार जो प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। तो इससे ऐसी, और हम लोग यहाँ पर इस भव सागर में तो फंसे हुए हैं, मगर फिर उसके बाद मांगते क्या है, धनम देही, रूपम देही, ये देही, वो देही। अरे ये सब तो सही जो दिमाग है या सही जो मनुष्य है, उस वो क्या ऐसी भौतिक चीजों से मांगने से जो सब जो है, जो खत्म हो जाएंगी, यहीं पर रह जाएंगी। तो ये चीजें न मांगते हुए हमको क्या मांगना चाहिए, हमको भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, कहते हैं यदि दास्यासि मे कामम, अगर आप मुझे अपना दास्य समझते हो और आप वर देने के अंदर पूर्णता से आपके अंदर वो शक्ति है कि आप मुझे वर दे सकते हो, तो यदि दास्यासि मे कामम वरं त्वाम वरदर्शभ कामानाम हृदय समरोहम, मेरे हृदय के अंदर जितनी भी काम वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो कामनाएं हैं, इन सभी को आप खत्म कर दो। तो जब ये खत्म हो जाएंगी तो भगवान का हमको जो ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन होगा। तो हमको प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। मगर हम कैसी प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं धनम देहि, रूपम देहि, ये देहि, वो देहि। हमको वो सबको छोड़ना चाहिए। Therefore, we shall be very very careful। प्रभुपाद यहाँ पर हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको बहुत जो भी इम्पायस एक्टिविटीज है, द इम्पायस एक्टिविटी के ऊपर मुझे एक गाना याद आता है, जिमी 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 आजा आजा आजा। ये पुरानी पिक्चर का जो दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। तो जिमी 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 इसको कैसे बोलेंगे, GIMI, GIMI, जिमी जिमी। तो जी क्या हो गया, गैम्बलिंग। उसके बाद में आई क्या हो गया, इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद में एम क्या हो गया, मीट ईटिंग। और उसके बाद में आई क्या होगा, इलिसिट सेक्स। तो ये जिमी जिमी, तो भौतिक जगत वाले बोलते हैं जिमी 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 आजा आजा, यानी ये सब चीजें उनको चाहिए। मगर हम अगर आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे तो बोलेंगे जिमी 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 जाजा जाजा जाजा, यहाँ से जाओ, हमको नहीं चाहिए, ये सब चीजें नहीं चाहिए। ये चीजें होंगी तो क्या होगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम भौतिक विषयों के अंदर इतने फंसे रहेंगे कि हम आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। और उदाहरण किस प्रकार का देते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है
तो ये जो है, ये एक जो भौतिक चीजें हैं, ये जो चारों चीजें बताई है, ये अगर आपके साथ में है तो आपकी प्रगति होगी, ऐसा नहीं होगी। भगवान का नाम लोगे तो प्रगति होगी, मगर वो प्रगति कैसे होगी कि आपने गीली लकड़ियों के अंदर आग लगाने का प्रयास किया। आग लगेगी मगर उसके अंदर आपका बहुत समय जाएगा, जन्मों जन्मांतर चले जाएंगे इसके अंदर। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको जो भौतिक विषयों से आसक्त नहीं होना है, उससे गीला नहीं होना है, हमको उससे सूखा होना है। तो जैसे उस पता है, अगर लकड़ी सूखी हुई है तो उसमें तुरंत आग लगेगी और हम भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड? तो जैसे पहले बताया कि 3 गुणों से ये पूर्णता से भरा हुआ है, सतो रजो और तमोगुण। तो इससे हमको ऊपर उठना है। आप भगवान के साथ में, डिवोशनल सर्विस के साथ में, आप निर्गुण, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका कोई, जिसके अंदर गुण नहीं है। निर्गुण का प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि 3 गुणों से परे, यानी सतो रजो और तमो गुणों से जो परे निर्गुण, उसका आप जो है, तो भगवान शुद्ध सतो गुण से भी ऊपर है। तो ऐसे उनकी हमको जो सर्विस करनी चाहिए, और उनकी सर्विस करेंगे तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगे। तो ऐसा हमको कैसे, कौन समझा सकता है? तो ऐसे हमको समझाता है गुरु, साधु और शास्त्र। तो चैतन्य महाप्रभु therefore recommends that, जो हमको क्या करना है, anyone who is aspiring to become advanced in Krishna consciousness, हमको क्या करना है, तो भगवत भजन करना है। तो वाय भगवत भजन? तो चलो वहां पर अगर भगवत भजन, भगवान का भजन कर देंगे, तो वहां पर हम लोग इस जो भव सागर में है, यहाँ से इसके लिए हमको एक रास्ता चाहिए, हमको एक नाव चाहिए जो हमको दूसरे किनारे पे पहुंचा सके। तो ये भगवत नाम ही हमको दूसरे किनारे पे ले जा सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं गुना, जो हरेर गुणाक्षिप्ता, मैंने आपको मद, आपको जो पागल होना है, तो पागल कौन किस चीज के ऊपर होना है? तो यू हैव टू गिव अप द मटेरियल मैडनेस, जो भौतिक जगत का पागलपन है, उसको छोड़ के हमको आध्यात्मिक पागल बनना है। और रियली कैसे पागल बनना है? सो मैडनेस, you have to give up the material things and then you have to depend on Krishna। पूरे तरह से हमको भगवान के ऊपर पागल बनना है। तो that madness is exhibited, इस तरह एग्जिबिट होती है, किस तरह बताई गई है? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको बताते हैं। युगायितम निमिषेण चक्षुर प्रवस्वितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। तो यहाँ पे दैट मैडनेस वांटेड, ऐसी पागलपन चाहिए। युगायितम निमिषेण, एक जोश, एक मिनट भी है, एक मिनट भी है, कैसा लगता है? एक युगों के समान लगता है। और एक युग कितना होता है? 12 वर्ष का। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि युगायितम निमिषेण चक्षुर प्रवस्यितम, मतलब हमेशा हमारे आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। किसके लिए अश्रु निकल रहे हैं? भगवान के साथ मिलने के लिए हम इतने आतुर हैं। there are tears in the eyes like a torrent of rain। वर्षा की ऋतु की, वर्षा की तरह जो है हमारे आंखों के अंदर से सतत आंसू बहने चाहिए भगवान के विरह में। भगवान से हम अलग हो चुके हैं, इस विरह के अंदर हमारे आंखों में से आंसू निकलने। युगायितम निमिषेण चक्षुः शून्यायितम जगत सर्वम, जो पूरा जगत है वो हमको शून्य लग रहा है, इसके अंदर कोई रस नहीं आ रहा है। तो भौतिक जगत के अंदर हमको रस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के अंदर हम फंसे हुए हैं और भगवान जो है वो आध्यात्मिक जगत के अंदर है। तो आध्यात्मिक जगत वाले भगवान से हमको मिलना है। इसके लिए इस जगत के अंदर हमको कोई भी जो है ऐसा नहीं मिलता जो हमको आनंद दे सके। तो ये ऐसे प्रकार की पागलपन होना चाहिए। तो ऐसा पागलपन होगा तो क्या होगा? तो गोपी प्राण धन प्रभु, इनका एक लेक्चर सुन रहा था, ये है 20 हो गए, यहाँ पर 7:20 हो गए। मुझे 5 मिनट चाहिए सिर्फ, क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो गोपी प्राण धन प्रभु, इनके ऊपर उनका एक लेक्चर सुन रहा था, जिन्होंने इनके अंदर बताया है कि जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, या जो जैसे हमको बताया है कि किस प्रकार के मायावादी होते हैं। तो मायावादी 2 प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से, एक होता है अद्वैतवादी, यानी वो जो है वो बहुत खतरनाक है। वो भगवान से लिटरली दे आर एनवियस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। दूसरे हैं ब्रह्मवादी, वो इम्पर्सनलिस्ट ही हैं, वो भी जो है
इम्पर्सनलिस्ट हैं, मगर इनके अंदर से जो बहुत खतरनाक हैं, जो जो बहुत स्ट्रांग है, वो कौन है? तो अद्वैतवादी। तो यहाँ पर उन्होंने जो लेक्चर के अंदर एक प्रश्न किया था कि जब सुखदेव गोस्वामी जब जब उनका जन्म हुआ था, तो वो तो पूर्ण रूप से इम्पर्सनलिस्ट थे। तो इम्पर्सनलिस्ट होते हुए ये प्रभुपाद का जो पर्पट अभी हमने पढ़ा, तो वहां हमने देखा कि क्या होता है, But the devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and who desire to become personal servitors of the Lord do not very much like the impersonalists. उनको impersonalists जो पर्सनलिस्ट है उनको इम्पर्सनलिस्ट अच्छे नहीं लगते, जो इम्पर्सनलिस्ट है उनको पर्सनलिस्ट अच्छे नहीं लगते। दस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इतने मतलब इस टाइम का हमको जानकारी भी नहीं है, इतना पुराने समय से दो ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल्स हैव समटाइम्स बिन कॉम्पिटिटर्स, ये दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता था, स्पर्धा चलती रहती है। तो ये स्पर्धा किसके ऊपर चलती रहती है? इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनलिस्ट थे तो वो पर्सनलिस्ट कैसे बने? तो इसी जो मतलब पर्पट के अंदर इसका उत्तर दिया गया, और यहाँ पर बताते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट पर्सनलिस्ट तभी बन सकता है, जो इम्पर्सनलिस्ट है वो पर्सनलिस्ट तभी बन सकता है जब वो भगवान के बारे में सुनेगा। और व्यासदेव जी ने क्या किया? व्यासदेव जी ने जितने लोगों ने उनके जो शिष्य थे उनको भेजा वहां पर, जो हमेशा भगवान भागवतम से रेसिटेशन करते रहे, भगवान भागवतम का जो श्लोक हमेशा बार बार कहते रहे और उनकी व्याख्या करते रहे। तो ये सुनने से जो एक इम्पर्सनलिस्ट भी पर्सनलिस्ट बन जाता है, और पर्सनलिस्ट जब वो बनता है तो इतना तीव्रता से आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर जैसा बताया है कि बाद में जो है सुखदेव गोस्वामी को उनको खुद को ये अनुभव हो रहा था कि मैंने अपना समय इतना क्यों व्यय किया इम्पर्सनलिज्म के अंदर। तो इसी के साथ में हम जो है इसको क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसमें से कोई किसी को कोई पॉइंट्स है, किसी को कमेंट्स हैं, किसी को ये अपनी पॉइंट्स ऐड करनी है तो प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु, आवाज आ रहा है? यस आ रहा है प्रभु। हाँ, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, आई लाइक इट वेरी मच। और जो दो तीन बातें आपने बताई दैट वर रियली वंडरफुल। एक तो पागलपन वाला कि दो तरह के पागल होते हैं, जो भौतिक जगत में है वो लोग भी पागल हैं और जो स्पिरिचुअल जगत में है वो लोग भी पागल हैं, लेकिन दोनों का जो पागलपन है टोटली एकदम मिरर इमेज है। एक है भौतिक चीजों के लिए पागल है और एक आध्यात्मिक चीजों के लिए पागल है। तो जैसे हम लोग अगर संतों का उदाहरण भी देखते हैं, जैसे वो दिन हम लोग गोरा कुमार का देख रहे थे, तो मतलब ही वाज सो मैड इन चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड कि उनका बच्चा भी उस मट्टी में आ गया, उसको भी रौंद दिया। तो दैट इज आल्सो यू कैन से काइंड ऑफ मैडनेस, स्पिरिचुअल मैडनेस। और जो भौतिक जगत में है वो एंजॉयमेंट करने में इतना पागल है कि वो भगवान उसको दिखता ही नहीं है, उसको या भगवान के भक्त नहीं दिखते। सो दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। और दूसरा वो जो जिमी वाला जो बताया आपने, दैट वाज रियली नाइस एक्चुअली। ये जब भी गाना सुनता था तो मुझे मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती याद आते थे, लेकिन अभी अभी ये जिमी गाना सुनूंगा तो आई विल रिमेम्बर यू। एंड जो चार चीजें बताई आपने, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग और इलिसिट सेक्स, तो दिस वाज आल्सो वेरी नाइस पॉइंट। सो थैंक यू द प्रेस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी और गोपीमोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस सेशन। जैसे गोपीमोहन प्रभु जी ने कहा बहुत बढ़िया था प्रभु। एंड जैसे वो आपने अमल पुराण के बारे में यू स्टार्टेड विद दैट वन, इट वाज दैट आल्सो वेरी नाइस प्रभु। और जैसे कि प्रभु जैसे वो आपने वो पागलपन का बता रहे थे प्रभु, तो प्रभुपाद जी हमेशा एक वो कोट करते थे एक स्टोरी जिसमें एक राजा था और उनका एक प्रजा था जो पागल था और उसको ऐसा ऑर्डर दिया था कि आप एक डंडा लेके पूरा गांव में घूमते रहिए।
और जब उसका वो जो राजा का जब मृत्यु निकट था प्रभु, तो उन्होंने सबको उनकी भेंट सबसे हुई, बट फिर उनको लगा कि मैं किसी को भूल रहा हूँ, तो एट द एंड ही रिमेम्बरिंग दैट पागल जो उसके गांव में था, तो उसको भी बुलाया। और जब वो मूर्ख व्यक्ति जब आया वहां पे, तो वो राजा ने कहा कि अभी आप सन्यास ले लो और ये जो दंडा आप लेके घूम रहे हैं वो दूसरे किसी के हाथ में दे दो। तो मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि वो राजा से कि आप कहाँ पे जा रहे हो? तो वो बोलते हैं, राजा बोला कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहां पे कोई नहीं आ सकता है। तो वो मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि मुझे पता है कि आप अपने रानियों के साथ अकेले आगे जा रहे हो। तो वो राजा बोलता है कि नहीं, मैं अपने रानी को भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो फिर बोलता है मूर्ख व्यक्ति, नहीं तो फिर आप अपने घोड़ों के साथ कुछ तो लेके जाइए, पैसा-वैसा, तो आपको ये यूज़ हो जाएगा जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। तो वो राजा बोलता है कि नहीं, ये जितने भी चीज़ें वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो ऐसा बहुत कुछ बोलता है। तो वो राजा बोलते हैं कि नहीं, ये कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिर राजा आखिर में वो मूर्ख व्यक्ति से बोलते हैं कि ठीक है, अभी आप एक काम करो, अभी इतने समय आपने काम किया है, तो ये डंडा अभी दूसरे के हाथ में दे दो। तो फिर वो मूर्ख व्यक्ति वो डंडा वही राजा के हाथ में दे देता है। बोलते हैं कि आपने पूरा लाइफ भर इसके लिए आपने इतना कुछ मेहनत किया, बट जाने के टाइम आप कुछ भी नहीं लेके जा रहे। तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मैंने किसी को नहीं देखा। तो आई थॉट आई विल कनेक्ट दिस स्टोरी हियर प्रभु। एंड हरि बोल। थैंक यू सो मच उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न ऐड करना हो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु ठाकुर। हरे कृष्णा। बहुत वंडरफुल क्लास था आपका। क्लास में कोई हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक्स रहता है। तो मैं शुरू में तो वही है प्रभु, बहुत अच्छा क्लास होता है आपका, बहुत अच्छा क्लास होता है, कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक्स हो जाता है। तो मैं शुरू में तो वही कहूँ जो आपने अभी बताया मल और अमल का बारे में। तो एक्चुअली मेरा कहना है जो एक्चुअली हमेशा के हम लोग को ये जो क्लास जो होता है ना, हमेशा हम लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत से सारे छोटा छोटा जो चीज होते हैं हम लोग को मतलब मालूम नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने मल और अमल का बारे में बताया, जो मल का जो इससे बताया अभी 3 गुणों से पढ़ा होता है, और जो अमल होता है वो 3 गुण से मतलब क्लियर हो जाते हैं जो भी है। तो उसमें बहुत अच्छा लगा वो। और दूसरा एक और पॉइंट थे जो आपने जिम्मी जिम्मी कहा, तो अभी जैसे गोपी मनोहर प्रभु कहा, जो फिल्म देखने के बाद मंदाकिनी और उसको याद आता है एकदम सेम वो भी आए। तो ये जो अलग किस्म से अभी आपने जो बताया अभी जिम्मी जिम्मी, इसका जो मीनिंग्स बताया बहुत अच्छा लगा वो चीज बहुत, इसलिए मतलब आपका जो क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कोई एक अलग किस्म का एक टॉपिक्स रहता है प्रभु। हरे कृष्ण, वही शेयर करने का था। हरे कृष्ण, धन्यवाद राम ठाकुर। प्रभुपाद की जाए। सत्यराज प्रभु, सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्णा। दोनों बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु प्लीज। नहीं प्रभु, जस्ट वही बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। और जैसे सब लोग मतलब हम लोग इतने कंडीशन है कि जब आपने जिमी जिमी का स्टार्ट किया था और सुनने में आनंद आया प्रभु, और हाउ यू कनेक्टेड इट टू स्पिरिचुअल। तो थैंक यू। ऐसे ही प्रभु आप हमको गाइड करते रहिए, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा, दंडवत। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच। हमने बहुत अच्छा जैसे गोपी मोहन प्रभु ने अभी बताया। प्रभु जी एक ही चीज मैं ऐड करना चाहता था कि ये मटेरियल और स्पिरिचुअल, अगर कोई भी ये गाना है तो आदमी जो भौतिक चीजों से बहुत आक्रोश है, वो जेमी जिमी का क्या मतलब निकालेगा, और जो भक्त है उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो हम लोग को मतलब इम्पोर्टेंस है कि हम लोग भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है, कि वो गाने में से भी हम लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल याद करते हैं, शिला प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन, अपने परंपरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू प्रभु जी। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला था ना पागलपन, तो पागलपन बहुत प्रकार के होते हैं। ये
तो उसमें से एक पागलपन है भगवान के लिए पागल होना। तो प्रभु जी एक जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे इधर टेम्पल में। तो वो लड़का था, कुछ जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मंदिर में आया था श्री राधा गोपीनाथ जी में, और उन्होंने जस्ट एक जो यंग बॉयज के लिए प्रोग्राम रहता है प्रभु जी एवरी सैटरडे, तो उसने एक ही बार ज्वाइन किया एंड देन ही रियलाइज कि ये उसमें कुछ तो है। एंड ही हर्ड किसको, एक महाराज ने उनका लेक्चर सुना एंड उसने फिर उसके ऊपर भगवत गीता रीड करना चालू किया एंड देन ही स्टार्टेड कमिंग टू श्रीमद् भागवतम क्लासेस टू राधा गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी में वो भागवतम क्लास के लिए आने चालू किया। तो उसका ऑफिस भी हम टेम्पल से नजदीक है। तो उसके घर वाले बोल रहे थे ये पहला मतलब 9 बजे निकलता था, अभी ये 7 बजे ही निकल जाता है, 6:30 बजे ही निकल जाता है और रात को 10 बजे आता है, इसको क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। फिर धीरे-धीरे वो भागवतम क्लास अटेंड करके उसने क्या किया, पूरा बाल उड़ा दिया और फिर ओनली शिका रखा। तो घर वाले बोल रहे इसका पहले तो एकदम अच्छे से स्टाइल मारता था, एकदम अलग-अलग तरह के बाल ये कट करता था, अभी ये अलग क्यों ऐसा हो गया है? उसने खाली शिका रख दिया, बाकी बाल कट किए और ऑफिस में भी वैसे ही जाता था वो, थोड़े से बाल रखता था और पीछे बड़े ही शिका। फिर धीरे-धीरे उसने क्या किया, उस मतलब धीरे-धीरे उसका इतना एडवांसमेंट हो गया एंड देन ही जॉइन टेंपल और उस सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो उसके आजू-बाजू वाले बोलते थे कि ये पागल हो गया, सब लोग बोलते थे। तो वो जो भक्त था, तो वो उसने ना ये रिवील किया एक ब्रह्मचर्य की, सब लोग मुझे पागल बोलते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य ने उनको एक ही चीज बताया कि नाउ यू आर रियल पागल फॉर कृष्णा, यू आर रियल पागल फॉर श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। तो बोले कि ये जो पागलपन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आध्यात्मिक जगत के लिए पागल नहीं होते, हम लोग ये भौतिक जगत में। तो आप जो पागलपन कर रहे हैं यही बहुत बड़ी पागलपंती है और आप यही करना चाहिए, हर एक जो जीवात्मा है उसको यही करना चाहिए, यही पागलपंती। तो ये पॉइंट ऐड करना चाहता है। नाउ ही इज अ ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much, Prabhu, for this wonderful addition to what I have said. और प्रभु ऐसा कुछ नहीं है कि whatever जो मैं सुनता हूँ वो मैं आपके सामने जो है अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करता हूँ, बट नॉट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई लाइफ। तो जैसे वो बोलते हैं गीगो, GIGO, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर जो हमारे गंदगी हमारे अंदर जाएगी वही गंदगी बाहर निकलेगी। हम गंदा सुनेंगे तो गंदा बोलेंगे। तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, वही गीगो इन है और गीगो आउट है, यानी गुड इन एंड गुड आउट। अगर हमने जो कुछ अच्छा सुना, भगवान के बारे में अच्छा सुना, तो हम भगवान के बारे में अच्छा ही सुनाएंगे और भगवान के बारे में हर चीज अच्छी होती है। तो वही चीज है, आधा ग्लास खाली है और आधा ग्लास भरा हुआ है, यानी आप या ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक है। तो ये इसके आप पे निर्भर करता है, आप उसको किस एंगल से देखते हो। तो आधा ग्लास खाली है तो वो आदमी पेसिमिस्टिक है, वो बोलता है ये आधा ग्लास खाली है। मगर जो ऑप्टिमिस्टिक होगा बोला आधा ग्लास भरा हुआ है, मतलब देयर इज वाटर इन इट। तो ऐसे कौन से पर्सपेक्टिव से लेना है, तो हर कॉइन के दो साइड होते हैं, जो हेड एंड टेल। तो वैसे ही है कि हर चीज के जो दो दो पहलू हैं। तो यहाँ पर भी पागल बनना है तो पागल भौतिक विषयों पे नहीं, क्योंकि भौतिक विषय हमको यहाँ पे लटका के रखेंगे और अनंत काल तक लटका के रखेंगे। और आध्यात्मिक के अंदर आप प्रगति कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड दिस व्हाट आई एम शेयरिंग। हरे कृष्णा। किसी और को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज वी टेक द नरसिम्हा आरती। जस्ट एक ही प्रभु, अभी इतना अच्छा लगा तो एक बार प्रभुपाद बोल रहे थे कि दे से वी आर मेड एंड वी से दे आर मेड, हु इज एक्चुअली मेड। लाइक हम लोगों मतलब भौतिक जगत में जो आसक्त है, हम लोग बोलते हैं ये पागल है, और वो बोलते हैं ये लोग पूरा छोड़ के क्या कर रहे हैं, ये लोग पागल है। तो हु इज एक्चुअली मेड, ये प्रभुपाद का एक बार लेक्चर में था। तो हरे कृष्णा। Even when they're discussing about, many times what happens, भी ऋषि को हम लोग स्कूल में ले जाते हैं या कोई किसी से बात करता है, तो दे से दैट जो मतलब मेटेरियली इन्वॉल्व है, मेटेरियली जो एंग्रॉस्ड हैं, वो बोलते हैं ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, वी आर स्पेशल फॉर हिम।
मतलब हम लोग के लिए वो स्पेशल नहीं है, हम लोग उसके लिए स्पेशल है। हम लोग बोलते हैं कि भाई वो अलग है, वो भिन्न है, मगर वो हम लोग उसके कंपैरिजन में हम लोग भिन्न है, क्योंकि वो ऑलरेडी फोकस्ड है, उसको पता है उसको क्या करना है। 16 राउंड चैन करने हैं, प्रसादम खाना है, भगवान का नाम लेना है, सुबह को मंदिर में जाना है, शाम को मंदिर में जाना है, और बाकी आदमी जब भी टाइम मिलेगा तो बैठ के अपने क्लिकर के ऊपर अपना जप करते रहता है। तो ही इज, उसके लिए हम लोग जो है ना कि वी आर डिफरेंट देन हिम, पर हम लोग रियल सेंस के अंदर ही इज ऑलरेडी कनेक्टेड। इट इज हु वी आर टू कनेक्ट अवरसेल्व्स इन दैट वे, कि उसके जैसा हमको पागल बनना है, यानी उसके जैसा हमको जो जो उसकी एक्टिविटीज है उसको हमको फॉलो करना। दिस इज व्हाट इट इज, हाउ यू प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बोला है कि आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा हुआ, तो आपका परसेप्शन क्या है लाइफ की तरफ, दैट इज व्हाट इट काउंट्स। This is what I have learned, and this is what I am trying to, understand from whatever I have heard from the scriptures or from the acharyas, or from how you want to become. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं कि मैडनेस है, we should be mad। तो जबकि एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इस श्लोक के अंदर क्या लिखा है, पहले just see the word and how the Prabhupada has mentioned हरे, उसके बाद में गुण क्षिप्ता, माना भगवान के जो गुण हैं उनके ऊपर आपको क्षिप्त बनना है। तो यहाँ पे क्षिप्त का जो मीनिंग एक्चुअली रियल इसके अंदर देखेंगे तो उसमें क्या बताया है, जो शब्दकोश के अंदर हम लोग बता रहे हैं कि गुण एट्रीब्यूट एंड अक्षिप्त मीन्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब का मतलब प्रभुपाद ने उसको टोटली डिफरेंट वे से उसको प्रोजेक्ट किया कि एब्जॉर्ब ऐसा नहीं कि तुम वहां पे थोड़े टाइम, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, यू हैव टू बी लिटरली मैड। किसके ऊपर? भगवान के गुणों के ऊपर। यानी भगवान के गुण के ऊपर अगर हम लोग पागल हो जाएंगे, उनके गुण कैसे हैं, मतलब उनके बारे में हमेशा सतत चिंतन करते रहेंगे। तो जैसे वो बताते हैं कि अगर एक जो आयरन रॉड है उसको आग में डाल दो तो बाद में वो आयरन रहता नहीं है, वो बाद में क्या बन जाता है, वो खुद एक आग बन जाता है। उसको फिर किसी से भी उठा के कहां पर भी उसको टच कर तो वहां पे आग लग जाएगी। तो you will get the qualities of Lord, but you cannot become Lord, but you will get all those good qualities of Lord। And in the similar way, if you are connected with the आध्यात्मिक गुरु है जो आपके, उसके साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एज द कंपनी सो द क्राउड, जैसे आपकी कंपनी रहेगी वैसे ही आपके अंदर जो ऐसे ही विचार आएंगे और ऐसे ही आपके अंदर बदलाव आएगा। हरे कृष्णा। Shall we start the Narasimha Arati, Prabhu? Yes, Prabhu. Hare Krishna. सर्वदे गिरधार प्रभु, यस। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादताय हिरण्यकाशी पूर्वक्षाय श्रीलटंकात् नखानाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मधिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखामद्भुत श्रृंगा दालिता हिरण्यकशिपूर्तनुभृङ्गम् केशवधीर्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश्वर हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि जय नरहरि। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो जस्ट